what it's like to be in love with me. Make a little morning love, cause I like it. देखिए MG शर्मा आज यहाँ इनॉग्रेट कर रहे हैं. इज 80+ year old and he is carrying forward the legacy of his father BG Sharma. Now when you take the name of BG Sharma Studio Udaipur, he is the pioneer in Pichwai art. Not only Pichwai art, but he is into so many Rajasthani style paintings. Now if you see the Pahari school which flourished after the Mughal style paintings, that is been culminated into this kind of provincial art school. Now BG Sharma, as we say, if you look at our evolution of Indian art, right from the early classical period, Mauryan art, to our Gupta period, golden age, then medieval period, and then Mughal period. This has been the culmination of all this evolution, and BG Sharma is a pioneer who has been painting all this kind of traditional art, and Pichwai is the master of Pichwai. Pichwai, we know the eternal love of Radha and Krishna. It's been made it's a different kind of representation. So BG Sharma's legacy has been carried forward by MG Sharma, his son, now who himself has done such a given such a rich heritage and produced such kind of art for our cultural heritage. So that's amazing, and this is a different kind of experience, and of lately if you see even the international auction houses or other things, our traditional art being revived. If you see currently, I saw some international show, even India Art Fair in Delhi. There were at least 5-6 stalls who were exhibiting the traditional art. So this has been revived because we are connecting to our roots. The way I can connect with this art, Pichwai art, whether it is a Pahadi Shaili, whether it is other kind of arts, that's the kind of thing we can easily connect with. So it's amazing show, and no doubt they are legends in themselves. So I hardly have the courage to say anything more. देखिए इंडिया आर्ट फेस्टिवल पहले से ही कला को प्रमोट करते आ रहा है. एंड इफ यू से सारे टाइप्स की कला, वी प्रमोट मॉडर्न आर्ट, इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट, एंड देन इवन ट्रेडिशनल आर्ट. In traditional art there are so many varieties, right from Warli art to our so many kinds of different forms, fusions of different forms. तो इंडिया आर्ट फेस्टिवल यही एक थोड़ा सा हमने एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पे एवरी आर्टिस्ट कैन कम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड पार्टिसिपेट. सो द प्रिपरेशंस आर इन फुल स्विंग. Our show is from 2nd to 5th November at New Delhi at Constitution Club of India, and this is our 8th year in New Delhi. This is our 12th year in Mumbai and 3rd year in Bangalore. So we are expanding and growing. Coming back to this current show, this kind of art which comes in a large number at India Art Festival, that makes it a vibrant platform. So thank you very much. तो ये हमारा 3rd एग्जीबिशन है. इससे पहले हम लोग बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में और इंडिया आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और ये 3rd टाइम है कि हम जहांगीर आर्ट गैलरी में हमारा जो एक्सक्लूसिव कलेक्शन है पिचवाइज का, जो बीजी शर्मा स्टूडियो आर्ट्स का एक्सक्लूसिविटी है, वो डिस्प्ले कर रहे हैं. और हमेशा बॉम्बे से अच्छा रिस्पांस मिला है, इसीलिए ये हम 3rd टाइम भी यहीं प्रेफर कर रहे हैं. और क्राउड अच्छा है, लोगों का रिस्पांस अच्छा है, पेंटिंग्स को काफ़ी अच्छे से तारीफ करते हैं और अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है. काफ़ी आर्ट लवर्स हैं, मेट्रो सिटी है, तो दैट इज़ द रीज़न कि बॉम्बे तो जो है नाथद्वारा से बॉर्न हुई,
पिचवाई जो है एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब संस्कृत वर्ड है, इसका पिच का मतलब होता है बैक और वाई का मतलब है हैंगिंग, मतलब जो पीछे लटका सके। सो पिचवाई जो है श्रीनाथ जी टेम्पल के अंदर श्रीनाथ जी की आप मूर्ति है, उसके पीछे इसको हैंग किया जाता था और इस पर जो कृष्ण जी की जितनी भी लीलाएं वो दर्शाई जाती थी फेस्टिवल के हिसाब से। जब मंथ कैलेंडर होता है फेस्टिवल का श्रीनाथ जी का, उसके हिसाब से उनको रेगुलर चेंज किया जाता था। सो उसके बाद ये बहुत मशहूर होने लगी बिकॉज का कलर वो है विविड कलर्स है उसके रिगार्डिंग। सो ये बहुत फेमस होने लगी इसके रिगार्डिंग। पहले मैसी साइज में हो जाती थी, फिर हमने इसको कंप्रेस करके स्मॉल साइज में भी करना चालू करा क्योंकि लोगों को बहुत अच्छा लगता है इसको लगाना घर में। स्टोन कलर यूज करते हैं, नेचुरल स्टोन कलर यूज होता है और रियल गोल्ड वर्क होता है। रियल कैसे यूज कैसे करते हैं? रियल गोल्ड मतलब कैसे, मतलब उसका कलर मतलब उसका कलर जो होता है उसका कुछ ये कर देते हैं। जो गोल्ड फॉइल्स आती हैं उसको एक्चुअली मिक्स किया जाता है वैक्स के अंदर, मोम के अंदर, उसको फिर घोटा जाता है, बहुत अच्छा उसका प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर इसको कलर के तौर पर यूज़ किया जाता है। और एक पेंटिंग में कितना टाइम लगता है इसे बनाने के लिए? इसको बनाने के लिए कम से कम 1 साल लग जाता है एक पेंटिंग के लिए? एक पेंटिंग के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जना काम करता है, उसकी जो आप नीचे डिटेल से बारीकियाँ वो बहुत डिटेलिंग में दी जाती है, इसलिए इसमें 1 साल लगता है बनाने में। और जो पिचवाई है वो एक्चुअली इंडिजिनस आर्ट फॉर्म है, तो नाथद्वारा राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टाउन है, वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। और जो आर्टिस्ट हैं MB शर्मा जी, उनके जो फादर हैं BG शर्मा जी, वो भी नाथद्वारा के ही रेजिडेंट थे, तो उन्होंने काफ़ी जो है इस आर्ट फॉर्म को डेवलप किया है और रिसेंटली GI टैग भी मिला है पिचवाई को ही। तो ये एक रीज़न है कि अभी काफ़ी ट्रेंड में भी है और काफ़ी लोग पसंद करते हैं पिचवाई को। और ये कॉटन क्लॉथ पे किया जाता है वर्क, तो ये इसका एक एक्सक्लूसिविटी है कि कॉटन क्लॉथ पे वर्क किया जाता है। राजस्थान को अवार्ड में सबको मिला चुका है एज बेस्ट आर्टिस्ट करके। जी, उनको बेस्ट वो आर्टिस्ट मिला है, बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान स्टेट मिस्टर MB शर्मा जी। इस तरह कला किसका कैसे मिलता है आपको? इस तरह कला का भी जब से आपका ये शो करते हो, जैसे कि बॉम्बे में, दिल्ली में, कहीं भी अगर इंडिया के बाहर भी, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको इस तरह का? रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि यूजुअली ये जो आर्ट फॉर्म है ये मेवाड़ स्कूल का है, तो ये आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। राजस्थान के अलावा जो अदर स्टेट्स है वहाँ पे आर्ट फॉर्म इतना पॉपुलर नहीं है, इन द सेंस कि यूजुअली वहाँ पे ये वर्क करते नहीं है, तो ये राजस्थान का एक्सक्लूसिव है। तो जब भी बॉम्बे है या दिल्ली है, बैंगलोर है, कैलकाटा है, तो वहाँ के लोग काफ़ी पसंद करते हैं बिकॉज़ उनके लिए एक यूनिक चीज़ है देखने के लिए। तो ये रीज़न है कि रिस्पॉन्स हमेशा से अच्छा ही मिलता है पिचवाई के लिए। और इनफैक्ट जो फॉरेनर्स भी जो मुंबई में या आते हैं और देखते हैं, तो उनकी तरफ से भी उनको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और कृष्ण जी के बारे में और श्रीनाथ जी के बारे में तो सब जानते हैं, तो वो एक डिवोशनल कनेक्ट भी है और साथ में ब्यूटी का कॉन्सेप्ट भी है। तो इसमें नेचर, वाइल्ड लाइफ, ब्यूटी और डिवोशन, हर तरीके का स्पिरिचुअल कनेक्ट लोगों को देखने को मिलता है। तो जो जिस चीज़ से कनेक्ट करता है, तो पिचवाई ऐसा है कि सब लोगों को कुछ ना कुछ जोड़ने के लिए मिल जाता है खुद से। अभी सबको जो आते हैं, बाहर लोग आते हैं, जो भी आपको समझाना पड़ता है कि इस तरह का वर्क है, जो आप लोग आते हैं देख के निकल जाते हैं, लेकिन उसमें जो डिटेल में है वो आप लिख के रखते हैं कि समझाए उसमें कर देते हैं? हाँ, डिटेल्स एक्चुअली हम एक्सप्लेन करते हैं, पूरी पिचवाई का समझाया जाता है कि इसमें कौन सी लीला दर्शाई जा रही है कृष्ण जी की, और फिर हम उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या है। मोस्टली लोगों को आजकल पता है पिचवाइज क्या है, पर लीला के बारे में थोड़ा हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इसमें क्या लीला हो रही है। सबसे ज़्यादा इसमें कहाँ मिला आपको? अगर इसके पहले शो किया था आपने, इसमें कहाँ मिला आपको ज़्यादा? मुंबई से हमारे यूजुअली जो क्लाइंट्स भी होते हैं वो मुंबई बेस्ड ही होते हैं, बिकॉज जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। तो मुंबई से हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है इसके लिए। और इसके अलावा पेंटिंग्स जो हैं अब्रॉड, सिंगापुर, UAE, दुबई, तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। और